Assalamu alaikum, my dear students. We have completed chapter 6 till exercise 6.2, and from 6.3 question 1, 2 and 3 we have completed. Today we will begin with next question, which is based on prime factorization method. To understand that, first we will see the prime numbers and then after we will begin with that. So let's see what is prime numbers. So prime numbers means the numbers which is having only two factors. Let's start with 1 only. So 1, is it prime or composite? Composite means having more than two factors. So 1 कौन से टेबल्स में आ रहा है? 1 सिर्फ एक ही टेबल में है, 1 1 जा 1, यानी उसका फैक्टर भी सिर्फ क्या होगा? 1. सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 is neither prime nor composite. Then 2. So 2 is in the table of 1 and 2 only. 1 2s are 2 and 2 1s are 2. So having only two factors, 1 and 2. So 2 is your prime number. Similar way 3. So check करो 3 कौन कौन से टेबल में आएगा? 3 1 3s are 3 and 3 1s are 3, यानी 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 and नंबर itself. यानी ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 तो होगा ही और नंबर खुद, 1 and नंबर itself. Then it's called as prime numbers. So 3 is also prime number. Then 4. 4 is not prime number because 1 4s are 4, 4 1s are 4, as well as 2 2s are 4. So 4 is your composite number. Then 5. 5 is your prime number. Now always remember one thing, it's not necessary that all the odd numbers are prime numbers. It's not like that. Let's say one odd number, that is 9. So 9 is composite number. वैसे बहुत सारे numbers हैं जो prime नहीं हैं. So don't think that all the odd numbers are prime numbers. Don't take this misunderstanding. Okay? After 5, 6. So 6 is prime or composite? Yeah, very good. It's composite. Then 7. 7 is prime or composite? Yes, it is prime. Then 8. 8 you will find out by yourself. Okay? 9. अब ये मत सोचना कि 9 odd है तो प्राइम. नो, 3 3s are 9, वो दूसरे टेबल्स में भी है, यानी 1 और नंबर के अलावा भी उसके सारे फैक्टर्स है. ओके? सो 9 इज कंपोजिट. देन 10. 10 is also composite. 11 is prime. 12 composite. 13 prime. 14 composite, यानी 14 कौन कौन से टेबल में आएगा? 2 7s are 14, 1 14s are 14, 14 1s are 14, right? So it is composite. 15 3 5s are 15, so it is composite. Similar way you can go up to 20. तो 16 to 20 में और कौन कौन से प्राइम होंगे? 16 आएगा प्राइम में? नो. 17. यस, 17 इज प्राइम क्योंकि 17 के दो ही फैक्टर्स है, 1 and नंबर itself. 18. यस, नो. 3 6 are 18, 2 9s are 18, right? Then 19. yes, 19 is again prime number. So I hope it is clear to you what is prime number, because if you know the prime number, then you can start this question. Okay? So again I am repeating, what is prime number? Prime number means having only two factors, 1 and number itself. Is that clear to you? Okay, now let's begin with the question. But before that, let me give you one task. What's your task? You will write all the prime numbers
from 1 to 50, 50. You will write all the prime numbers from 1 to 50. Okay, let's begin with the question. So here first question is 729. You have to find the square root by prime factorization method. यानी जो भी फैक्टर्स हम लिखेंगे वो सारे किसके फॉर्म में होंगे, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू फैक्टर्स ऑफ 729. And I already told you that the factors must be prime. So let's start. अब हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपकी हेल्प करेगा. तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स कौन, 0, 2, 4, 6 और 8. अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल होगा. सो यू विल स्टार्ट योर डिवीज़न विथ 2. बट यहाँ आपका लास्ट डिजिट इवन नहीं है, मतलब ये 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आपका ये एक नंबर तो आउट हो चुका. सो यू डोंट हैव टू यूज़ फॉर दैट एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन दैट. तो 2 के बाद अब कौन सा नंबर है, 3. तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स. यानी ये जितने भी नंबर के डिजिट्स है उसका एडिशन करो. लेट्स डू दैट. 7 + 2 + 9. सो 7 + 2 9 एंड 9 + 9 18. अगर ये नंबर, ये जो उसका एडिशन का जो नंबर है वो 3 के टेबल में है या 3 से डिविजिबल है तो 729 भी 3 से डिविजिबल होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, इनका एडिशन करो. एडिशन करने से जो नंबर मिल रहा है वो अगर 3 के टेबल में है या अगर दूसरी उसमें कहे तो क्या कह सकते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है. डिविजिबल मीन्स व्हाट, द रिमाइंडर शुड बी 0. अगर वो 3 के टेबल में है देन यू कैन से दैट 729 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो यू कैन स्टार्ट योर डिवीज़न बाय 3. गेटिंग हाउ टू चेक. ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली बड़े नंबर में पता नहीं चलेगा. यू कैन यूज़ डिविजिबिलिटी रूल्स. वी हैव डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी ईजी. इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5 देन यू कैन स्टार्ट विथ 5. ओके, तो ये इजीली हो जाएगा. 2, 3, 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखो क्योंकि 2, 3, 5 दिस आर द प्राइम नंबर्स, राइट. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दैट. 729 divide by 3. If you cannot do it directly, you can divide and check. So 729 divide by 3. If you can do it directly here also, then also it's good for you. Okay, 3 2s are 6. Do you know now how to do division? Okay, here we have to check that 7 is greater than 3, then we have to take only one digit. And now we will check, is 7 there in the table of 3? If no, then we will take smaller and nearer to 7. So 3 2s are 6 we have taken because 3 3s are 9 which is greater than 7. Okay, 7 minus 6 1 and then 2 down. 1 2 12. So is 12 there in the table of 3? Yes. 3 4s are 12. Still 9 left. Bring it down. We'll bring down digit 1 by 1. Okay, 1 by 1 डाउन लेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये नंबर डिवाइज़र से बड़ा है तो डिवीज़न पॉसिबल होगा. अगर ये नंबर डिवाइज़र से बड़ा नहीं है तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा. नाउ चेक फॉर 9. इज़ इट ग्रेटर देन 3? यस.
And is 9 there in the table of 3? Yes, 3 3s are 9. यहाँ रिमाइंडर में 0 आया मतलब क्या, ये डिविजिबल है. So here what we are going to write? We are going to write 243. Understood? Now again we will check the prime numbers only. यहाँ सिर्फ हमें prime numbers लेने हैं. Okay? So check. यहाँ 2 से divisible होगा because last digit is not even number. So 2 से divisible नहीं होगा. तो अब दूसरा प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद? 3. तो 3 के लिए चेक करो इनका एडिशन. 2 + 4 6 एंड 6 + 3 9. तो 9 3 के टेबल में है. यस, 3 3s are 9. यानी 243 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 3 से. सो 243 डिवाइड बाय 3. 3 8s are 24. अब यहाँ हमने 2 डिजिट क्यों लिए? क्योंकि 2 से डिवीज़न स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज 2 इज स्मॉलर. सो वी विल टेक 2 डिजिट 24. सो 3 8s are 24, 3 down and 3 1s are 3, 0. So what's your answer? 81. Again we will check. What's the last digit? 1. Even नहीं है. So not possible with 2. Let's check with 3. तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इनका एडिशन करो. 8 + 1 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 और 9 3 के टेबल में है यानी ये 3 से डिविजिबल होगा. ऐसा मत सोचना कि आप डायरेक्टली यहाँ 9 9s are 81 लिख दो. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर. ओके, we have to take here prime numbers only, so we cannot take 9 over here. Is that clear? अब 81 को 3 से डिवाइड करके चेक करो. 81 डिवाइड बाई 3. 3 2s are 6, 2 1 down 21 and 3 7s are 21. So here your answer is 27. So 3 9s are 27, then 3 3s are 9, 3 27 3s are 81, 3 9s are 27, then 3 3s are 9. Let's do it again. What was that? 729 divide by 3. So we got here 243. फिर हमें यहाँ क्या मिला था? 3 8s are 24, 3 1s are 3, then 3 27, then 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. ये तो समझ में आया ना? 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, ये सारे उसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स. But now we want square root of 729. So this is the symbol of square root. And then we are going to write this all in the square root because we want to find the square root. So we will write this all the prime numbers over here. How many times 3 is there? 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6. And what's the meaning of this? It means that by multiplying this all we will get 729. हमें स्क्वायर रूट चाहिए. तो ये 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6. तो इसका हाफ कर दो. क्या हो जाएगा 6 का? 3. सो 3 क्यूब यानी ये क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So square root of 729 is 27. Understood? यहाँ हमने ये हाफ क्यों लिखा? यहाँ 6 टाइम्स थे, यहाँ हमने 3 टाइम्स. 6 के हाफ क्यों लिखे? क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है. ओके, स्क्वायर रूट का मतलब ये भी हो सकता है ना 1/2. तो ये 3 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स.
तो ये पावर जो है वो कट हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी 3 क्यूब। और इसका मीनिंग क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हमने शॉर्ट में ही लिख लिया कि यहाँ 6 टाइम्स 3 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो वो कितने टाइम हो जाएगा, 6 का हाफ 3। आई होप यू गेट दिस। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 400. So let's start with them. I already told you that directly you will check the last digit. If it is even, then you can start with 2. So here 0 is even, और अगर 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो दूसरा प्राइम नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। सो इट्स बेटर यू विल स्टार्ट विथ 2। ओके, हम स्मॉल प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 5 से करोगे देन ऑल्सो नॉट टू वरी, बट इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ द स्मॉलर, यू विल गो इन असेंडिंग ऑर्डर। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0, यानी 200 2 ज़ा 400। फिर अगेन 2 से होगा 200 ज़ा 200, then 2 5s are 10 and 1 0, 225s are, अब 2 से होगा, नो अब 2 से नहीं होगा, because the last digit is not even number, it is 5. So if the last digit is 5 then it's divisible by 5. So we will take here 5 5s are 25. ये कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में 1 ना मिल जाए। So 5 1s are 5. Getting? Now we want to find square root. So square root of 400 is equal to, we'll write this all the numbers over here. How many times 2 is there? 1 2 3 4. So 1 2 3 4, और फिर 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम। So multiply by 5 into 5. ओके, फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हम कितनी टाइम लिखेंगे, 2, और 5 कितनी टाइम है, 2, तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 टाइम। नाउ मल्टीप्लाई देम, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20. I hope you get this. Now third question you will try to solve by yourself. And the third question is 1764. I am repeating all the steps. We have to take only prime numbers. Here you will check the last digit. It is even, मतलब आपका डिवीज़न 2 से स्टार्ट होगा। और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स मिले हैं उसे यहाँ लिखना है, और फिर उसको हाफ करके यहाँ लिखना है, फिर वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। ओके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर. I hope you understood this. Today we are doing only these 3 sums. Then after we will begin with the other sums from this question 4. Thank you.